चल. सर माझा आवाज येतोय का? हा, आवाज येतोय? एकच मिनिट. येस सर, येतोय आवाज. हा बोला. हॅलो. फायलम हा बोला. Phylum Porifera, Cycons, Typha, Spongilla, freshwater sponge, Spongia, bath sponge. Phylum Coelenterata, Physalia, Portuguese metaphor, Adamsia, sea anemone, Pinnatula, sea pen, Gorgonia, sea fan, Meandrina, brancolor, Aurelia, jellyfish, Hydra. Phylum Tinophora, Pleurobrachia, Tinoplana, Phylum Platyhelminthes, Tinea, tapeworm, Fasciola, liverfluke, Planaria, regeneration. Phylum Aschelminthus, Ascaris roundworm, Wucheria, filaria worm, Encyclostoma hookworm. Phylum Annelida, Nereis, Dioecious, Spiritima, earthworm, Hirudinaria, blood-sucking leech. Phylum Arthropoda, economical important insect, apis, honeybee, bombec, silkworm, Laxifer, insect vectors. Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex japanese encephalitis. Gregarious pest, Locustolocus, living fossils, Limulus kingcraft, Phylum Mollusca, Pila, applesnake, Pintada, Pleurostol, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, seahead, Dentalium tuskshell, Chitoptera chiton, Phylum Vicandermata, Asterias starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber, Ophihora bitter star, Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Psychoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Mirachodata, Ascadia, Sulfa, Doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lancelet. Class Subphylum Vertebrata, class Cyclostoma, Petromyzon lamprey, Magzine hagfish, class Contractiles, Scalidon dogfish, Pteris sawfish, Carcharodon great percher, Trigon stingray, Torpedo electric ray, class Ostrictis, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Lebiorohu, Catla, Cutla, Clarius magur, aquarium fishes, Betta fighting fish, Pterophyllum angelfish, class Amphibia, Bifoto, Rana frog, Hyla tree frog, Salamander, Salamander, Ichthyophis limbless amphibia, class Reptilia, Chilon turtle, Testudo tortoise, Camelon lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator alligator, Hemidactyl wall lizard, poisonous snake, Naja cobra, Bangarus crate, Vipera viper, class Eus, Corvus crow, Columba pigeon, Sitacula parrot, Strutio ostrich, Pavo peacock, Neophron vulture, class Mammalia. Oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammals, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaque monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balænoptera blue whale, Equus horse, Panthera tigris tiger. Tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you, sir. थँक यू सो मच वेदश्री ठाकरे. बेटा कुठून आहात तुम्ही वेदश्री? सिल्लोड वरनं सर. सिल्लोड. आणि स्कूलचं नाव? स्वामी विवेकानंद. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वेदश्री, खूप छान. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. छान, खूप छान, बढ़िया. चल now please pay attention. खूप छान. आता मी चार्ट हे करतोय. चलो. TND. Okay. Now, how many character in the list given below are regarding true regarding Echinodermata? इसका मतलब क्या है?
तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि हर मंडे को संडे को टेस्ट होती है, ओके, वीकली टेस्ट है, और उसका टेस्ट एंड डिस्कशन जिसे हम टीएनडी कहते हैं, टीएनडी टेस्ट एंड डिस्कशन होता है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो यही क्लियर हो जाए। ऐसा होता क्या है कि हम टेस्ट तो देते पर टेस्ट का एनालिसिस कोई भी नहीं करता है, और हम टेस्ट का जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। जब तक हमारी गलतियां हमें समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्ट कहां पे हम गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये टीएनडी की, अगर हमने टीएनडी अटेंड कर लिया तो हमें पता चलता है कि हमने क्या सोचा था और सर ने क्या बताया है, तो कहाँ गलतियां हुई है, कितने सिली मिस्टेक्स हुए हैं, या फिर मैंने कितने, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सब क्लियर हो जाता है। तो ये टीएनडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अभी जो नए हैं जिन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया होगा तो उनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐप में ही है, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऐप में आपको एडमिशन के बाद ही आपको ऐप में ऐड किया जाता है। ओके, तो जस्ट सुनो। टॉपिक था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड एक मींस एनिमल किंगडम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कैरेक्टर इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ट्रू रिगार्डिंग इकोनोडर्मेटा। तो इकोनोडर्मेटा के बारे में पूछा है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल करेक्ट है। मोस्टली मराइन करेक्ट है। लार्वा रेडियली सिमेट्रिकल गलत, लार्वा बच्चू है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल होगा। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल है, हॉट टी में आते हैं, ये करेक्ट है। माउथ इज डॉर्सल, माउथ इज ऑन डॉर्सल साइड एंड एनस ऑन वेंट्रल साइड, ये भी रॉन्ग है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज गिल्स, गलत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है वहां पे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स मोस्टली मराइन 2, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल 3, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। नाउ 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट है। एक्सक्लूसिवली मराइन है, एक्चुअली देखा जाए तो मरीन है, मोस्टली मरीन नहीं। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ओके, एक्सक्लूसिवली मरीन, सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 2, an important characteristic that hemichordate share with chordate is, बोलो। ventral tubular nerve cord, ओके, नहीं। pharynx with gill slits, pharynx without gill slits, absence of notochord। तो pharynx with gill slits ये फीचर है कॉर्डेट में, याद रखो, दिस इज एन फीचर ऑफ कॉर्डेट। और ये हेमिकॉर्डेट में भी फीचर है, ये नीट में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने ये डाला था। ओके, which of the following is not character uniting all chordates। नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट में होगा। स्पाइनल कॉलम, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड सभी में होगा। फैरिंजियल गिल स्लिट सभी में होगा। स्पाइनल कॉलम नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो N2 P2 के ऊपर ये क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फैरिंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। ओके, क्लियर है? ओके, okay, excretory system is absent, but you told that they excrete through the gills. Echinodermata, no? How many characters in the list given below are true regarding echinodermata? Endoskeleton of mostly calcareous ossicles, mostly marine, larva are radically symmetric, fertilization in general, organ is gills. Excretion gills, just wait, excretory organ gills जो है ना, that mollusca में है, excretion via gills is present in mollusca. Feathery gills help in respiration as well as excretion. Feathery gills in mollusca help in respiration as well as excretion. ठीक, just wait.
बराबर. चौथा जे क्वेश्चन नंबर 1 जे क्वेश्चन नंबर 1 इक्यानोडर्मेटा में एक्सक्रीटर सिस्टम अब्सेंट है, बट जो मेन म्हणजे स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटर सिस्टम इज अब्सेंट, बट दैट एक्सक्रीशन ऑकर थ्रू द गिल्स. तो नंबर 1 करेक्ट है. एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरस ओसिकल करेक्ट है. फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, ये भी करेक्ट है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन गिल्स, ये भी करेक्ट है. और डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये भी करेक्ट है. तो याचा आन्सर पाहिजे 4. कोणीतरी करेक्शन करून घ्यायचं. क्वेश्चन नंबर 1 मी लिहून पण द्यायलाय 4 किंवा असं याला डी लिहितो मी. ठीक आहे, म्हणजे ते इझी लक्षात राहील. हे करेक्ट आहे. ठीक आहे. हा चालते चालते. मोस्टली मराइन नाही, exclusively marine. All existing echinodermata are exclusively marine. The group chordata is mostly closely related evolutionarily to the group of echinodermata. क्या क्या सिमिलरिटी है? That is both are deuterostomes. Echinodermata and chordata are deuterostomes, means उनमें क्या होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज anus is developed earlier than the mouth. Which of the following feature is common to earthworm, butterfly, spider and prawn? Earthworm belong to phylum. देखने क्या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो earthworm belong to phylum mollusca, बरोबर है ना? Annelida. Butterfly, spider and prawns, they belong to phylum Arthropoda. तो ventral nerve cord सभी में कॉमन है. All these are non-chordate. देखो सेटे आर प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा, एंटीने आर प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा, नेफ्रिडिया is the excretory organ in Annelida, but ventral nerve cord is present in all the vertebrate. Question number 4 बाकी है क्या? Scale found on the shark are known as plaque. अभी आपको shark पता होना चाहिए. Shark belong to which class? Chondrichthyes or Osteichthyes? Shark belong to Osteichthyes. Carcharodon, great white shark. तो स्केल फाउंड ऑन शार्क आर नोन एज दोस्तों प्लैक्वाइड स्केल. क्या नाम है उनका? प्लैक्वाइड स्केल. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, पैरापोडिया नहीं, जॉइंटेड अपेंडिस होता है. पैरापोडिया और फीचर ऑफ दोस्तों एनिलिडा, उसमें से भी कौन सा? नेरिस. नेरिस में है. बढ़िया. 8 बॉडी हैविंग मेश work of cell, internal cavity is lined with the food filtering flagellated cell, मुझे कॉलर सेल की बात कर रहे हैं. and indirect development are the characteristic feature of phylum. यहां पे चाहिए था एक्चुअली पोरीफेरा. इसका आंसर है पोरीफेरा. इसका आंसर है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा. क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो कोई तो भी. क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज अगेन डी, पोरीफेरा चाहिए था. बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल मींस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इंटरनल कैविटीज दैट इज स्पॉन्जोसील लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल, उनका नाम है क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल. एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फीचर पोरीफेरा के फीचर है, स्पॉन्जस के फीचर है. 9 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर इज रॉन्ग? रॉन्ग पूछा है. मोलुस्का सूडोसिल, पहला ही रॉन्ग है. ओके, सूडोसिलम इज प्रेजेंट इन एस्केहेलमिंथस. नाइडीरिया निमोसिस्ट, करेक्ट है. निमोसिस्ट का दूसरा नाम क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल. एनेलिडा, ओके, क्लोरेगॉगन सेल्स. इकोनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इकोनोडर्मेटा क्या है दोस्तों? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये भी करेक्ट है इकोनोडर्मेटा में कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है. दिस इज आल्सो करेक्ट. दिस इज आल्सो करेक्ट. ओके. ओके, चलो. एक मिनट. हाँ,
ओके ठीक है, कोई बात नहीं. क्लोरेगॉगन सेल्स मीन्स दीज आर द सेल्स विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्लायकोजन. आर्थोम मध्ये असतात, सिलोमिक फ्लूइड मध्ये. ओके, दिस सेल विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ glycogen and also help in dosto metabolism, means they also help in detoxification and all that. Chlorogorgon cells. Okay, आर्थोम मध्ये असतात. Now question number 10, organ and phylum. Parapodia, Annelida. B, C, Malpighiantibus arthropoda, Nidoblast, Coelenterata. From the above table, find out the missing organ or function A, B, C, D. ऑप्शन तो ये बराबर है. पैरापोडिया. From the above table, find out the missing organ or function A, B, C, D, E respectively. पैरापोडिया बरोबर है, सॉरी, ते डायग्राम दिसतंय का तुम्हाला? ओके, हे डायग्राम दिसतंय तुम्हाला प्रॉपरली? डायग्राम म्हणजे तेच पूर्ण क्वेश्चन दिसतंय का? याला स्किप करू आपण. बरं, बी चा आन्सर काय पाहिजे? बी टिनोफोरा कॉम्प्लेट बरोबर आहे. सी मोलुस्क मध्ये रेड्युला असतं, हे बी करेक्ट आहे. पुढचं फंक्शन्स वगैरे राहिले त्याचे. आयडेंटिफाय द गिवन एनिमल अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मला एनिमल सांगा, कोण आहे हा? पूर्ण दिसतंय, तुम्हाला दिसतंय का? बर, लॅपटॉप वर दिसतंय. बर, हा नाव सांगा, नाव. कटलाय, हा कटलाय. ओके, कॅटला कटलाय. मग कटला मधला ऑस्टिक थाईज, बोनी फिशेस. स्किन इज टफ कंटेनिंग मायन्यूट प्लॅकॉइड स्केल, गलत. टिनॉइड किंवा सायक्लॉइड स्केल असतील. इट हॅज 4 पेअर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एअर ब्लॅडर, नहीं, कवर्ड बाय ओपरक्युलम चाहिए था. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ओविपैरस है, ये करेक्ट है. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड जॉ आर वेरी पावरफुल. माउथ टर्मिनल होता है और जॉ इतना पावरफुल नहीं है. तो आंसर इज सी. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. Among the organism depicted in the figure below, which of the following character is common to all? तो पहला है इकानोडर्मेटा का एस्टेरिया स्टारफिश. फिर दोस्तों ये क्या है? हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका दिख रहा है. फिर है स्कॉर्पियन और फिर है पाइला. तो सब ऑल ऑफ देम आर नोटोकॉर्ड, ऑल ऑफ देम आर नॉन कॉर्डेड. सो दोस्तों नर कॉर्ड इज वेंट्रल. ओके, ओफियूरा ब्रिटल स्टार है वो. इकाइनस ओफियूरा ब्रिटल स्टार है. ए ओफियूरा ब्रिटल स्टार. बी दैट इज अ फैसियोला हेपेटिका. सी स्कॉर्पियन एंड डी पाइला. ऑल ऑफ देम आर नॉन कॉर्डेड. सो नर कॉर्ड इज डीवीएस, पता है आपको, दैट इज वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड है. रीड द 4 स्टेटमेंट एंड गिवन बिलो. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट मींस करेक्ट कौन से हैं? पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, करेक्ट है. मेडुसा इज फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप, ये भी करेक्ट है. मेडुसा आर प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय पॉलिप्स. ओके, मेडुसा आर प्रोड्यूस. ओके, पोयम, ओबेलिया पोयम, ये ऐसा है ना हमारे पास. पॉलिप, ओके, ओबेलिया आणि पोयम. पॉलिप इन ओबेलिया सेक्सुअली प्रोड्यूस मेडुसा, ऐसा है. तो ये 3 नंबर गलत है. पॉलिप आर प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय मेडुसा, ये भी गलत है. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट मींस करेक्ट पूछा है. करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों में चार स्टेटमेंट है, दोन करेक्ट दोन इनकरेक्ट है. दोन आंसर त्याचं. पॉलिप इन ओबिलिया, पॉलिप इन ओबिलिया नाम का एक एग्जांपल है, असेक्सुअल प्रोड्यूसेस मेडुसा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following living organism completely lacks cell wall?
सेलुलर एनिमल में एब्सेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी पैन गोर्गोनिया उसमें एब्सेंट होगी। Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? Okay, flying fish, cuttlefish, silverfish, Pisces, गलत। फ्लाइंग फिश ठीक है, कटल फिश और सिल्वर फिश नहीं। सिल्वर फिश बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, कटल फिश बिलोंग टू दोस्तों दैट इज अ मोलुस्का, फाइलम मोलुस्का, फाइला एपनस्टेल, पिंकटेडा परलोस्टर, सेपिया, कटल फिश। सेंटिपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, पर इनका क्लास अलग अलग है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई और सिल्वर फिश ये इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। सिल्वर फिश बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकानोडर्मेटा, ये गलत है। ओके, स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा क्या? पाइला एप्पल स्नेल, सॉरी इकानोडर्मेटा। एस्टीरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, ओफियूरा बिटल स्टार। बट ये स्पाइनी एंटीटर जो होते हैं, स्पाइनी एंटीटर, दे बिलोंग टू, they are not belong to phylum Echinodermata, याद रखो, they not belong to phylum Echinodermata, no they are animal but they belong to phylum Chordate है दोस्तों ये। ओके, ये Chordate होते हैं स्पाइनी एंटीटर। ओके, स्पाइनी एंटीटर दे आर मैमल है, याद रखो मैमल है। नाउ one of the following, one of the representative of phylum Arthropoda is cuttlefish, silverfish, pufferfish, flying fish. Silverfish is the answer. Which of the following is correct with respect to classification of myxine? Myxine hagfish, class Cyclostomata. बर, Chordata agnatha, Pisces, Cyclostomata. गलत। Chordata vertebrata agnatha, Cyclostomata, ये करेक्ट है। Pisces थोड़ी हो, किसी ने तो भी यहाँ पे Pisces किया नहीं, वो Pisces थोड़ी है, अग्न्याता है, जॉलेस वर्टिब्रेट और क्लास उनका साइक्लोस्टोमेटा है। बी इज द आंसर। 18 which of the following is are not characteristic of class Osteichthyes? Osteichthyes के फीचर क्या क्या नहीं है? सेकंड येईल का याचा आन्सर? कशाचं? हो ना, सेकंडच आहे ना। which of the following is correct with respect to classification of myxine? सेकंडच आन्सर आहे ना त्याचा, बरोबर आहे। आता not characteristic of class Osteichthyes, but body streamlined and mouth is terminal, ये उसका फीचर है। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्युलम, ये भी उसका फीचर्स है। स्किन कवर्ड विद साइक्लोइड एंड प्लैक्वाइड स्केल, प्लैक्वाइड स्केल नहीं होते, टिनर्ड स्केल है, ये उसका फीचर नहीं है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, नहीं वो ओविपेरस होते हैं। तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो दोस्तों नॉट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Osteichthyes। साइक्लोस्टोमेटा आर, और क्या है वो साइक्लोस्टोम्स? मरीन एंड नॉन माइग्रेटरी, फ्रेश वाटर फॉर्म एंड नॉन माइग्रेटरी, मरीन एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पाउनिंग, बी इज द आंसर, सी इज द आंसर यहाँ पे। और उसे कहते हैं कुछ माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन है, ठीक है। Which of the following organism is correctly matched its column name? Aurelia जेलीफिश, कॉम जेली बोला है, पर ये करेक्ट है क्या? नहीं, ऑरेलिया जेलीफिश है, कॉम जेली बोले तो फाइलम टिनोफोरा। एडमसिया सी एनिमोन, ये बराबर है। अनसाइक्लोस्टोमा पिनवम, गलत है। अनकाइलोस्टोमा हुकवम है। एप्लेसिया सी माउस ने, एप्लेसिया सी हेयर है। इन प्लैटिहेलमिंथस एम्ब्रियोनिक लेयर, ectoderm and endoderm are separated by mesoglia. डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसी आर डिप्लोब्लास्टिक, तो पहला गलत है, पहला गलत है। प्लैटिहेलमिंथस डिप्लोब्लास्टिक है। बॉडीज असिमेट्रिकल, नहीं। प्लैटिहेलमिंथस में देखा जाए तो बॉडी कैसे दोस्तों? बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी। देयर इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, देयर इज अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी कैविटीज एब्सेंट, ये बराबर है। असिलोमेट होते हैं, ओके। एस्केलमिंथस सूडोसिलोमेट, उसके पहले वाले असिलोमेट, उसके बाद वाले सिलोमेट। Mark the incorrect statement for the phyla Platyhelminthes to Echinodermata. Okay, Platyhelminthes to Echinodermata means जिनमें क्या है? Platyhelminthes to Echinodermata जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है।
ऑल ग्रुप रिप्रेजेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये बराबर है। ऑल आर ट्रिपल प्लास्टिक, ये भी बराबर है। ऑल आर यूकैरियोटिक, एनिमल है तो सभी यूकैरियोटिक है। नन ऑफ द अबव इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 23, which of the following is not characteristic of class chondrichthyes? ओके, क्या क्वेश्चन है? chondrichthyes के बारे में क्या फीचर नहीं उसका? गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, होता है। दे आर प्रीडेसियस मींस प्रीडेटर है ये भी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, नहीं, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस, इनमें नहीं होता है। दे बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। मी ये तो बेटा बेटा कृतिका तुझा क्वेश्चनवर, ये तो तुझा क्वेश्चनवर। हाँ, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, कंसिस्टेंट होता है नोटोकॉर्ड किससे किसमें? कॉन्ड्रिक्टाइस में और सेफेलोकॉर्डेट में। सी इज द आंसर। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 मॅच करा म्हणताय। बर, करेक्ट मॅच बिटवीन द कॉलम 1 एंड 2। कार्टिलेजनस फिशेस आणि बोनी फिशेस चे काय काय फीचर आहेत? फीचर दिले तिथं 5। युजुअली एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन, इंटरनल फर्टिलायझेशन, मोस्टली ओव्हिपॅरस, मेनी आर विव्हिपॅरस अँड डायरेक्ट डेव्हलपमेंट। चला सांगा, ए म्हणजे कार्टिलेजनस चे काय फीचर आहेत? यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थे तो फीचर नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये उसका फीचर है। मोस्टली ओविपैरस वही नहीं है। मेनी आर वी, मोस्टली ओविपैरस ये भी फीचर नहीं है। मेनी आर विविपैरस, हाँ। तो फीचर नंबर 2 आणि 4, 2 और 4, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्टिलेजनस फिशेस। बाकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली ओविपैरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, दीज आर द फीचर ऑफ बोनी फिशेस। ये ऐसा क्वेश्चन था। Which of the following is true about the nidoblast or nidocyte? Coelenterata. They are present on tentacles and body, correct है। They are used for anchorage, defense and for capture of prey, ये भी correct है। They contain stinging capsule and nematocyst, all of the above are correct, all of the above are correct। Which of the following statement are true for lymph based on blood cell? Okay, which of the following statement is true for lymph? ओके, बेस्ड ऑन ब्लड सेल मींस लिम्फ के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है कि कौन से ब्लड सेल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा पूछा है। डब्ल्यूबीसी एंड सीरम, ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन, ये भी है, ये उनमें नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, आरबीसी प्रोटीन प्लाज्मा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर लिम्फ? डब्ल्यूबीसी सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, आरबीसी तो नहीं होती है, आरबीसी प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स ये भी नहीं होते हैं। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड होते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। ये क्वेश्चन बराबर है। ओके, डब्ल्यूबीसी यानी सीरम, प्लेटलेट नसते। आन्सर रॉंग नाहीये, पण ह्याचा क्वेश्चन तेवढा प्रॉपर फॉर्म नाही झालेला। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, हा क्वेश्चन पाहिजे तसा फॉर्म नाही झालेला। आलं लक्षात? याला पाहिजे जसं फॉर्म करायला पाहिजे होतं तसं फॉर्म नाही झालेला। ओके, काही अधुरा आहे ते। What is true about the leukocyte? Leukocyte means कौन से? WBC. Their sudden fall in number in indication of blood cancer, गलत। उनका नंबर इंक्रीज होता है ब्लड कैंसर में, और कितना? ल्यूकेमिया में मोर देन 50,000 पर mm³। दे आर प्रोड्यूस इन थाइमस, ये भी गलत है। दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर्ड इन थाइमस। दे आर इन्यूक्लिएटेड, नहीं म्हणजे विदाउट न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड मींस विदाउट न्यूक्लियस, नहीं उनमें न्यूक्लियस होता है। दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, ये करेक्ट है। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दे कैन ओके स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, उसको क्या बोला जाता है प्रोसेस को? डायपेडेसिस। क्या बोला जाता है? डायपेडेसिस। 28, लिम्फ, द लिम्फ सर्व टू, लिम्फ का काम क्या है? फंक्शन ऑफ लिम्फ, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, यही काम है उसका। मेन काम है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में रिटर्न करना, ब्लड में लेके आना, यही काम है। 29, एंटीजन आर प्रेजेंट
inside the nucleus on cell surface, inside the cytoplasm on nuclear membrane. Cell membrane के ऊपर होते हैं. So answer is B. Okay. Removal of calcium from fresh collected blood would be, okay, removal of calcium from freshly collected blood would cause delayed clotting, prevent clotting, cause immediate clotting और prevent destruction of hemoglobin. अगर कैल्शियम ही निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो हो नहीं जाएगा, कोएगुलेशन नहीं होगा, मींस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा. तो बी इज द आंसर. Which one of the following organ can be called as a sort of blood bank? Which one of the following organ can be called as a sort of blood bank? म्हणजे कोणला ब्लड बँक म्हणतो? आलं लक्षात? लंग्स, हार्ट, लिवर और स्प्लीन, किसको बोलेंगे ब्लड बैंक? नहीं, हार्ट तो नहीं है, हार्ट नहीं होता ब्लड बैंक. क्यों कहा जाता है ब्लड बैंक? Why spleen is called as a blood bank? कोई मुझे बता सकता है? Because it acts as a reservoir of RBC, WBC. उनका रिजर्वायर है. लीवर आंसर नहीं, स्प्लीन आंसर है. सी गेट टुगेदर देयर. नहीं, यहाँ पे आरबीसी बनते नहीं है, पर रिजर्वायर होता है. रिजर्वायर होता है, ठीक है. ग्रेव्हयार्ड ऑफ आरबीसी तर आहेच तिथं, पण रिझर्वायर पण आहे. ठीक आहे. पुढे दिलेली बघा लाईन. थांबा. हे तुम्हाला 12th बुक आहे. हे बुक कुठलं? 12th. तुम्हाला मी वाचून पण दाखवलं होतं लिम्फोइड ऑर्गन. जर तुमच्याकडे असेल पेज नंबर 154 तर जरूर काढा. पेज नंबर 154. मी एक लाईन मार्क करतो पेज नंबर 154 वरची, ती जरा बघा. ते तर ग्रेवयार्ड तर आहेच, पर स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसलिए उन्हें ब्लड बैंक नहीं कहा जाता है. ओके, ये लाइन पढ़ो जो मैंने मार्क की है. दिसते का तुम्हाला? पेज नंबर 154, ये वाली डायग्राम उस पे, ये वाली डायग्राम 12th का बुक है ये. मैंने बोला था आपको लेके आने के लिए. Now please read this line. Yes or no? Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. इसका मतलब क्या है? बहुत सारे इरेथ्रोसाइट है. आरबीसी मींस ब्लड बैंक जैसा काम करते हैं. या ऐसा क्वेश्चन आया है. यस और नो? ये मैंने आपको बोला था, समझे आप? तो कौन सा ऑर्गन, नया कुछ सीखने को मिल रहा है. कौन सा ऑर्गन को हम ब्लड बैंक कहेंगे? किस ऑर्गन को आज से ब्लड बैंक कहेंगे? लाइन कुछ ऐसे बेटा. स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट. नो, रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर मींस वहां पे इरेथ्रोसाइट होते हैं बहुत ज्यादा स्प्लीन में. सो ब्लड बैंक ऑर्गन कौन सा है आज से? स्प्लीन. मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ये दोनों हो गए दोस्तों, क्योंकि ये फैगोसाइटिक है. ओके, डी इज द आंसर. 33. मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बर, eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocyte.
ओके, और उनके काम दिए हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामाइन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, रिलीज ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामाइन, बर रिलीजेस हिस्टामाइनेज अँड डिस्ट्रक्टिव्ह एंजाइम. ओके, चलो कोई बात नाही. तर जरा लक्ष द्या, इओसिनोफिल चं काय फंक्शन आहे? इओसिनोफिल रिलीज हिस्टामाइनेज अँड डिस्ट्रक्टिव्ह एंजाइम. ओके, हिस्टामाइनेज. बी न्यूट्रोफिल रिलीजेस ग्रॅन्युल, नाही, बेझोफिल्स. बी फॉर बेझोफिल्स रिलीज ग्रैन्यूल्स दैट कंटेन हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन. ये भी चाहिए था, हिस्टामाइन तो है यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन है, सी मींस न्यूट्रोफिल, तो ऑप्शन नंबर 2 phagocytosis. Neutrophils are phagocytic cells. Phagocytic cells means they engulf the bacteria or pathogens. और lymphocyte number 1, these are the immune cells, जैसे कि T lymphocyte और B lymphocyte. T lymphocyte, okay, and B lymphocyte both involved in immune mechanism. That T lymphocyte are involved in cell mediated immunity and B lymphocyte are involved in humoral immunity. Question number 34, what is the correct order of these event? Okay, so ये coagulation की कुछ event दिए है, conversion of fibrinogen to fibrin, clot retraction and leakage of serum, thromboplastin formation, conversion of prothrombin to thrombin. तो सबसे पहले बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फिर दोस्तों कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन टू फाइब्रिनोजन, और सबसे लास्ट में होगा क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम. 35, मैच द कॉलम विद कॉलम 2, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स. मैंने देखा नहीं है, पर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज है. लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी दोस्तों अलग अलग हो सकता है. लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट 1 वीक का होता है, 8 डेज, और लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी 10 to 13 डेज. सो आरबीसी का है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये गलत हुआ है शायद. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 2 चाहिए यहाँ पे. ओके, और लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट जो चाहिए वो होता है 3. तो ऐसा कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 35, option C is the correct. Okay, option C is the correct. Okay, yes. Ayush सांगा बेटा. हाँ, find out whether the given cell type are granulocyte or agranulocyte and choose the correct option. आपको पता है ग्रैनुलोसाइट कौन से, जिनमें ग्रैनुल्स है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल. अग्रैनुलोसाइट 2 है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. फिल वाले ग्रैनुलोसाइट, अनिसाइट वाले अग्रैनुलोसाइट. सो दोस्तों ग्रैनुलोसाइट ये किसके क्या आएंगे? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, पहले 3, और अग्रैनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. 1 इज द आंसर. 37, बंडल ऑफ फीस इज अ नेटवर्क ऑफ, बोलो, फाइबर फाउंड थ्रू आउट द हार्ट, मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल. वो तो परकेंजे फाइबर है. मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल. ओके, थ्रू आउट द वॉल तो कोई नहीं. मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल. नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड वेंट्रिकल, नहीं, मसल फाइबर ही है. B is the C is the answer. Muscle fiber throughout the heart wall. ऐसा कोई भी नहीं है muscle fiber throughout the heart wall, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. ठीक है, that will be the correct answer. To be more specific, C is the correct. Actually परकेंजे फाइबर चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं. Systole refer to the contraction of atria and ventricle both. 39, first heart sound is लब sound at the end of systole. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लब साउंड कहां पे होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल. डब और डब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल. लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर. डब नहीं, लब साउंड है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बिगिनिंग. और डब कब आएगा? लब डब. डब कब आता है दोस्तों? डब आता है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. बरोबर है कि नहीं? डायस्टॉल के शुरुआत में कौन सा आएगा? डब साउंड. और लब का आता है जब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्वेश्चन नंबर 40, पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन इन हैविंग. पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का डिफरेंस क्या है दोस्तों?
दैट इज पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अभी थोड़ा सा बाकी है, पर आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है और वेन थोड़ी सी थिन वॉल होती है। आपने अगर वो डायग्राम देखा होगा तो वहां पे है दिया हुआ, डी इज द आंसर। फर्स्ट हार्ड साउंड इज ड्यू टू, क्यों होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, एंड सेकंड हार्ड साउंड इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। और दूसरा है दोस्तों वाइब्रेशन जस्ट आफ्टर क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल का ही दूसरा नाम है माइट्रल वॉल, तो सी इज द आंसर। पेसमेकर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्ट बीट, गलत। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पल्स रेट, गलत। auricular ventricular node that provide impulse for heartbeat, galat. Sinoatrial node that provide impulse for heartbeat, that is so D is the answer। pace इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्टबीट, हार्टबीट मेजर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पेस मेकर हम जो उसे कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पेस मेकर, and that artificial pacemaker is used to replace when SA node is not functioning properly. So we replace the function of SA node with the help of that artificial pacemaker, and that artificial pacemaker has the ability to generate the action potential, वो pacemaker होता है, ठीक है। So hard sound which is longer, लब डब both equal, and मैंने longer बोला था तो मैंने 4L बोला था, 4L फर्स्ट हार्ड साउंड के लिए 4L। नंबर 1 लब, फिर दोस्तों लो पिच है, लॉन्गर है एंड लेस लाउडर है। 4L याद है, लब इज लेस लॉन्गर नहीं, लेस लाउडर है बेटा, लेस लाउडर, ओके लेस लाउडर है, ओके। 40 मध्ये काय असू शकतं? बीप 40 का, बर ठीक आहे, वापस येतो। फर्स्ट हार्ड साउंड इज क्लोजर ऑफ, फर्स्ट हार्ड साउंड इज ड्यू टू, बर pulmonary artery differ from pulmonary vein in having, no नहीं in having, सेकंड कसा आन्सर है बघा, pulmonary artery differ from pulmonary vein in having means pulmonary artery का फीचर क्या है ये पूछा है। in having खाली डिफरेंस नहीं पूछा है कि pulmonary artery pulmonary vein से डिफर है, तो क्या चीज है ऐसे pulmonary artery के पास, ये क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन समझ लो दोस्तों। मुझ में आप में भास्कर शिंदे सर डिफर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन और दे डिफर फ्रॉम देयर स्टूडेंट इन हैविंग, तो दोस्तों कैसा है, हम सिमिलरिटी क्या है, हम दोनों बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप भी और मैं भी, ओके हमारा दोनों का टारगेट है एमबीबीएस क्रैक करना, मींस मेरा मेरे स्टूडेंट के लिए, आपका खुद के लिए है, ये है हम दोनों का टारगेट है रिजल्ट लाना, पर हम में दोनों में क्या फर्क है, तो भास्कर शिंदे सर डिफर फ्रॉम देयर स्टूडेंट इन हैविंग, तो मेरे पास एक डिग्री है जो अभी आपके पास आने वाली है। सो ये ऐसा फीचर है, दैट इज द डिफरेंस कि पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन इन हैविंग, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से कैसे डिफरेंस है, जो कि और कौन से चीज में, जो पल्मोनरी आर्टरी के पास है। सो थिक मस्कुलर वॉल, वॉल बराबर है, पल्मोनरी वेन वॉल और एब्सेंट अगर ये होता तो ठीक होता, पर वॉल्स नहीं होते पल्मोनरी आर्टरी में, वॉल्स आर द फीचर ऑफ वेन। लार्ज ल्यूमन ये भी वेन का ही फीचर है, ओके लार्ज ल्यूमन इज द आल्सो फीचर ऑफ वेन। क्वेश्चन नंबर 1 वर येतो, आलं लक्षात। क्वेश्चन नंबर 41 च काय आन्सर पाहिजे, सी एंड डी पण असेल ना, व्हायब्रेशन आफ्टर क्लोजर ऑफ मायट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, वाइब्रेशन जस्ट आफ्टर क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। हाँ इथं थोडस यहाँ पे 41 का डी भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 41 का डी भी है, कोई बात नहीं, पर टू बी एक्यूरेट C is the more accurate। ओके एक्चुअली वो सेमिल्यूनर वॉल ऐसा कुछ तो भी चाहिए था, ओपनिंग वाइब्रेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ माइट्रल ट्राइकस्पिड ऐसा चाहिए था, वो गलत हुआ है, बट जस्ट आफ्टर C is the more accurate। ओके एक मिनिट आशिष, येतो ना तुमच्या क्वेश्चन कडे बेटा, एवढं होतं। पेसमेकर हो गया, 43 हार्ड साउंड विच इज लॉन्गर, तो दोस्तों लब। परकिंजे फाइबर और स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर लोकेटेड इन हार्ट, बराबर है 1। एवरेज कार्डियक आउटपुट इज कितना है, एवरेज कार्डियक आउटपुट दोस्तों 5040 है, 5 लीटर होता है, कितना है 5 लीटर, तो 5.3 लीटर पर मिनट हो गया क्वेश्चन। ओके चलो कोई बात नहीं, तो इसके जरा देख लो, ये ऑप्शंस में है, इसके करेक्शन और भी करते हैं, रुको।
37 बोनस नाही आहे. हा, आता तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? क्वेश्चन नंबर 1 चा ऑप्शन सी येईल. बरं ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये जातो. दोन मिनिट हा थांबा. क्वेश्चन नंबर 1 चा ऑप्शन सी येईल का? 4 नाही. एंडोस्केलेटन कॅल्केरियस ऑसिकल बराबर है. मोस्टली मरीन नहीं, ऑल ऑफ देम आर मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन है. ओके, कोई भी ऐसा इकानोडर्मेटा नहीं है जो फ्रेश वाटर में होता है. मोस्टली मरीन का मतलब क्या है? सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ऐसा नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली मरीन है. लार्वा रेडिली सिमेट्रिकल है, गलत है नहीं है. फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल, ये बराबर है. माउथ, ये भी गलत है. एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज गिल्स, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, पर एक्सक्रीशन ऑकर थ्रू गिल्स और डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तर तुम्ही मला सांगा, म्हणजे 6 नंबर 7 नंबर आणि 6 नंबर बरोबर आहे. आणि थांबा थांबा थांबा, एंडोस्केलेटन ऑफ कॅल्केरियस ऑसिकल बरोबर आहे, पहिलं बरोबर आहे. फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, ये भी बराबर है. एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज गिल्स एंड डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट. 4. सो क्वेश्चन नंबर 1 च काय झालं? क्वेश्चन नंबर 1 च काय पाहिजे? डी पाहिजे का? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 च काय पाहिजे? सी पाहिजे. डी झाले का? क्वेश्चन नंबर 1 च काय पाहिजे? सी. बरोबर आहे. आता बरोबर आहे का? होतं बेटा एक्सक्रेशन, बरोबर आहे. होतं गिल्स मी सांगितलेलं आहे. थांबा 2 मिनिट. हे बरोबर झालं आता. हा ठीक आहे सर, ठीक आहे. हा, आता सांगा तुम्ही, आता सांगा याच्या पुढचा क्वेश्चन सांगा. बरं, आता मी असं घेतो. थांबा, आता कसं जायचं? 2 मिनिट थांबा. आता 4 टप्प्यात जाऊया. 1 ते 10 मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? 1 ते 10 मध्ये, 1 ते 10 मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? क्वेश्चन नंबर 1 ते 10. 1 तर झाला, 8 मध्ये प्रॉब्लेम आहे काहीतरी. क्वेश्चन नंबर 1 ते 10 मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? तसं जाऊया, म्हणजे ते कळल. तुमचे क्वेश्चन तुमच्या 4 टप्प्यात, 1 ते 10, 10 ते 20, 20 ते 30 आणि पुन्हा मग 30 ते 45 शेवटी. आहे का काय प्रॉब्लेम? क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये जातो. थांबा. बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स मीन्स दोस्तों, मेशवर्क ऑफ सेल मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, माउथ डॉर्सल साइडला कुठं असतं रे सृष्टी बेटा? माउथ इज ऑन द व्हेंट्रल साइड ना, सिंपल गोष्ट आहे. माउथ व्हेंट्रल साइडला आहे, एनस डॉर्सल साइडला आहे. सिंपल गोष्ट बेटा. हा, माउथ व्हेंट्रल साइडला असतं, एनस डॉर्सल साइडला. मेशवर्क म्हणजे नेटवर्क, मेशवर्क म्हणजे नेटवर्क बेटा. हा, मेशवर्क म्हणजे नेटवर्क. आपण पहिल्या 10 बद्दलच बोलूया, समजतं? मेशवर्क म्हणजे नेटवर्क, ऍग्रिगेशन ऑफ सेल्स. तर याचं सांगितलं ना, त्याचा आन्सर पोरीफेर आहे. क्वेश्चन नंबर 8 चा आन्सर पोरीफेर आहे, डी. मी ते क्लिअर केलेलं आहे. हा, 10 पर्यंत 10 नंबरचाच क्वेश्चन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. सी आहे ना आन्सर? सी तर चुकून आलं बेटा, सी आन्सर नाहीये, आन्सर इज डी. 10 नंबरचा क्वेश्चन इथं दिसत नाहीये प्रॉपरली. तुम्हाला दिसतो का तिथं 10 नंबरचा क्वेश्चन? हा, दिसत आहे ना, काय प्रॉब्लेम? हा, पुढे 10 ते 20 काय प्रॉब्लेम आहे? 10 ते 20 क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यू नंबर 10 टू एमसीक्यू नंबर 20. इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 15 12 में है. तो ये सिंपल है. अमंग द फॉलोइंग डिपेक्टेड ऑर्गेनिज्म, कॉमन पॉइंट ये सभी नॉन कॉर्डेट है. डायग्राम आपको आने चाहिए. पहला है ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, दूसरा डायग्राम है फैसियोला लिवर फ्लूक, स्कॉर्पियन और पाइला. ऑल दीज आर नॉन कॉर्डेट. और नॉन कॉर्डेट का फीचर है कि उनमें जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल डॉर्सल सॉलिड है. ये सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 15, which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? तो उनका क्लासिफिकेशन क्लास, ये जो हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, सेसे फ्लाई, सिल्वर फिश, ऑल दे बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा एंड क्लास इंसेक्टा बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये आपको पता होना चाहिए. बाकी सब रॉन्ग है, बाकी सब रॉन्ग है. बी नहीं आएगा. सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन. तो ये सेंटीपीड, मिलीपीड ये इंसेक्टा से नहीं बिलोंग करते बेटा. ये इनका क्लास ही अलग है, ये इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करते. ये सेंटीपीड, मिलीपीड जो है ना, ये इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करते, इनका क्लास अलग होता है, याद रखो.
इनका क्लास अलग है, ठीक है। क्लास इंसेक्ट का मैंने फीचर बोला था, आपको याद है? क्लास इंसेक्ट का मैंने आपको एक फीचर बोला था, याद है क्या? देयर इज अ 3 पेयर्स ऑफ लेग, और ये सेंटीपीड और मिलीपीड में कितने लेग्स होते हैं? ओके, सेंटीपीड और मिलीपीड्स में बहुत सारे लेग होते हैं, और क्लास इंसेक्ट का फीचर है 3 पेयर्स ऑफ लेग, ठीक है। ठीक है, हाँ। आप ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज द आंसर इज सी, बर, ठीक आहे. क्वेश्चन आता जे चालू आहे बेटा तेच, हा जे सध्या जे चालू आहे ते टीएनडी त्याच्यावरच आहे. बर, पुढं काय 20 ते क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? 20 टू 30, 20 टू 30, 26 में. ओके, जस्ट वेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्ब बेस्ड ऑन ब्लड? ये तो मैंने बोल दिया ना, 26 नंबर बोनस है करके. ये ये चाहिए था कि क्या लिम्फ में एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है, वहां पे इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया है. 26 मैंने बोनस दे दिया. 30 मध्ये ऑप्शन ए पण नाही राहणार का? ते ऑप्शन रिमूवल ऑफ कैल्शियम कॉज डिलेड क्लॉटिंग, नहीं. डिलेड क्लॉटिंग क्यों? क्लॉटिंग ही नहीं होगी ना, कैल्शियम नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं होगी. डिलेड काय को? हर क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम लगेगा, और कैल्शियम ही नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं होगी. क्लॉटिंग नहीं होगी बेटा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है. 27, विच इज ट्रू अबाउट द ल्यूकोसाइट? डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या है? तो दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, उसे डायपेडिसिस कहा जाता है बेटा. दे आर इन्यूक्लियर, नहीं, उनमें न्यूक्लियस होता है. दे प्रोड्यूस इन थाइमस, नहीं, दे आर प्रोड्यूस इन दोस्तों बोन मैरो. दे सडन फॉल इन नंबर इन इज इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, नहीं, उनका नंबर इंक्रीज होना ये ब्लड कैंसर का ये है, इंडिकेशन है. क्वेश्चन नंबर 22, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फाइला प्लैटिहेल्मिन्स टू इकानडर्मेट. तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सभी करेक्ट है. जैसे कि ऑल ग्रुप रिप्रेजेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है. ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल आर यूकैरियोटिक, सभी करेक्ट है. ओके, ट्वेंटी सिक्स मैंने बोनस दिया बेटा. थांबा 2 मिनिट झालं. 30 टू 45, 30 टू 45 आप कर सकते हो कॉल. 37, एक मिनट ना, 37. बंडल ऑफ हीस इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक है. आंसर सी इज द करेक्ट वन. ऑल करेक्शन ऑर्डर एक्सेप्ट 26. ओके, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 35, 1 पाहिजे. मैच द फॉलोइंग वन, नहीं नहीं 1 नहीं है बेटा. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी थ्रू 120 डेज, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी 3 8 डेज, नहीं नहीं. लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स दोस्तों 1 वीक का होता है, 8 डेज का लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट. तो सी का आंसर 3 होना चाहिए, 8 डेज. ओके, हो गया. 37 का मैंने बोला ना, मसल फाइबर फाउंड इन द वेंट्रिकल वॉल, तो ठीक है, वेंट्रिकल का ही पार्ट है एक्चुअली, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ऑल दैट. ओके, नर्व फाइबर नहीं बेटा, गलत. नर्व फाइबर नहीं है वो, मसल फाइबर ही है, मॉडिफाइड मसल फाइबर है वो. नोडल टिश्यू है, मैंने कहा था स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है. ओके, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं, याद रखो. हाँ, बंडल ऑफ हिस 40 प्लीज रीचेक. ओके, पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन इन हैविंग थिक मस्कुलर वॉल. अगर आपको ये डायग्राम देखनी है, तो अगर देखना है तो पेज नंबर जो बुक है एनसीईआरटी का, वहां पे आर्टरी वेन और कैपिलरी की एक डायग्राम दी है, छोटी छोटी छोटी, वहां पे जाके देख लो. वॉल गलत आंसर है, वॉल नहीं है. ओके, पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन इन हैविंग
थिक मस्कुलर वॉल, ये आंसर आहे. थिक मस्कुलर वॉल, वॉल नाही रे तिथं, वॉल नाही येत बेटा तिथं. तसं वॉलचा तसा अर्थ नाहीये त्या वॉलचा बेटा. ओके, ते ओपनिंगला वॉल वेगळी गोष्ट है, तुम्हाला माहित नहीं वेन एंड आर्टरी में अगर देखा जाए तो मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है. नो प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको समझाता हूँ. वॉल्स इन वेन का मतलब ये ऐसे ओपनिंग के ऊपर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ. See this, see this image. ये ऐसे वॉल्स होते हैं. ये ऐसे वॉल है, जगह जगह पे ऐसे वॉल होते हैं वेन्स में, ये नहीं है पल्मोनरी आर्टरी में. ओके ये जगह जगह पे वॉल होते हैं. ओके ओके, ट्रूमन में सेम एमसीक्यू, उसका आंसर वॉल दिया. फिर भी एक बार देखता हूँ, ठीक है ठीक है, फिर भी एक बार देखता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार देखता हूँ फिर भी. ओके 26 बोनस आहे सांगितलं ना बेटा. 26 बोनस आहे तो कळाल, क्वेश्चन प्रॉपर नाहीये. ज्या फॉर्म मध्ये तो क्वेश्चन पाहिजे होता तो क्वेश्चन त्या फॉर्म मध्ये नाहीये, चुकीचा क्वेश्चन आहे. मग ते करेक्शन, अरे 2 मिनिट वेळ लागेल, आणखी लेक्चर पण संपलं नाही. हा वेळ लागेल बेटा, ठीक आहे. जस्ट 41 च सी आणि डी, कारण की ते डबल ते करावं लागतं, थोडा वेळ लागला. ओके बोला ना बेटा वेदांश, बोला. 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 ओके झालं करेक्शन, बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 30 एक्सप्लेन करा म्हणते तो, बराच वेळ झाला. क्वेश्चन नंबर कोणता 30. मनीषा बेटा, कैल्शियम इज वेरी इसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग. त्याची गुठळी बनण्यासाठी कॅल्शियम गरजेचं आहे. अगर कैल्शियम ही हमने निकाल दिया तो कोएगुलेशन नहीं हो जाएगा. कोएगुलेशन मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी. तो प्रिवेंट क्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अगर आप पढ़ोगे तो हर स्टेप में कैल्शियम इज इसेंशियल. ओके हर स्टेप में कैल्शियम इज इसेंशियल. Echinodermata have no primary organ for excretion, but instead release their nitrogenous waste in the form of ammonia through their respiratory system. Now respiratory system क्या है? Gills. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? गिल्स. याद रखो, तो करेक्ट है ना? ओके. अरे किती डचकलो मी, काय झालं? काही नाही. अचानक आवाज आला साउंडचा, ठीक है चलो. मसल फाइबर और नर्व फाइबर, अरे नर्व फाइबर अलग चीज है, उनमें न्यूरॉन होते हैं. मसल फाइबर में मसल सेल्स है. ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है. ओके सब जगह पे मसल ही तो है बॉडी में. तो ये जो हार्ट के मसल फाइबर है वो स्पेशलाइज होते हैं, दे हैज एबिलिटी फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. ओके समझे? ओके चलो, तो रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही. चलो रुकते हैं. कैसी है इंप्रूवमेंट?
अर्नव, एनस और एक्सक्रेटरी ऑर्गन का कोई, एनस इज फॉर दोस्तों एक्सक्रेशन के नहीं, एनस इज फॉर इजेशन। मैंने एक्सक्रेशन और इजेशन का डिफरेंस बोला था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त। एक्सक्रेशन अलग चीज है, इजेशन अलग चीज है। एक्सक्रेशन मींस जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होता है वो एक्सक्रेशन आता है, और एक्सक्रेशन मेनली नाइट्रोजनस बेस के लिए, इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड के लिए होता है। ठीक है निखिल, आप आपके पेपर के ऊपर फोकस करो। ओके मैं देखता हूं क्या है, तो क्या इंप्रूवमेंट है। ओके प्रतीक बढ़िया, चेताली ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इंप्रूवमेंट बोलो, कंसिस्टेंट बढ़िया है। कहां से कहां तक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वेदिका, आमेश बढ़िया, वेदांत काळजी घ्या बेटा, काळजी घ्या। उदय अभ्यास करा। जयदीप कवाड़े वाह बढ़िया। वैभव 170 बढ़िया। नंदनी 175 बढ़िया बढ़िया। आयुष बेटा ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट अच्छी बात है। मोहनमय बढ़िया। चिन्मय अच्छा है। उन्मेष 150 अच्छा है। कोई बात नहीं सनवी बेटा, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। सौरभ बढ़िया, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया। जयदीप, सुध बहुत बढ़िया। वन ओके कोई बात नहीं। श्रीकांत कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, मृण्मयी गुड। ओजस डोडल बहुत बढ़िया। आयुष सोनी 140 बढ़िया। मृण्मयी 175। आई गॉट 17। वेदांत लोंडे 0 क्या कितना है 17 बढ़िया। वेदांश बढ़िया बढ़िया। श्रीकांत का प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो खुद की इंप्रूवमेंट देखो, खुद की। जस्ट कंपेयर यूर सेल्फ, ओके कंपेयर विथ यूर सेल्फ, ये हमें सीखना है। खुद की इंप्रूवमेंट देखना है, टॉपर नहीं। एक बार देख लिया हो गया कि क्या चल रहा है क्लास में, बस इतना ही, उसके साथ कंपैरिजन नहीं। ओके खुद की इंप्रूवमेंट देखो। तो चलो रुकते हैं। ओके